सारा न्यू बहुत प्यारी सत श्री अकाल। हाँ, अगर अगर कोई आतंकवादी होता, कोई खालिस्तानी होता, कोई बुरे इरादे वाला होता तो सबसे पहले यहाँ पे मिलिट्री होती। जब आपके इरादे अच्छे हों तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। ये लंगर चल रहा है क्योंकि आपके इरादे अच्छे हैं। किसानों के हौसले इतने मजबूत हैं कि वापस नहीं आएंगे। जे जित के आवांगे तो साडे गले च हार पाओ, नहीं तो साडी अर्थी ते हार पाओ। इस तो वड्डी कोई कमेंट नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है सरकार नूं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जब से मैंने किसानों के ऊपर मुद्दा ये जो है कवर करना स्टार्ट किया है, मैंने स्टैट्स देखे हैं, मेरी वीडियोस जो है वो डाउन जा रही हैं। जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा सारा का सारा मैं डोनेट करूँगा किसान आंदोलन में, सारा का सारा। सारा न्यू बहुत प्यारी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਮਾਲਯਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਚਲਿਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। साथ है बना लो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ? ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪੰਜੌਰ ਦੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਏਸੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੂਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹੰਢਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 1907 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਛਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਉਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਉਰੇ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲਤੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰਹੂਗੀ ਉਹ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੜਾ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? नहीं सर, चाहे कोई भी है अदर देन दिल्ली, अगर हम बात करें, चाहे राजस्थान में होने के एक बार वहाँ पे भी ट्राई हुआ हमारा, इसके अलावा जो और राज्य थे, लेटेस्ट एग्जांपल आपका मध्य प्रदेश है ना, जब इंडिया कोविड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में जनवरी में पहला केस आ गया था, हमारा डिटेक्ट हो गया। लेकिन जब तक मध्य प्रदेश में एक बीजेपी की सरकार नहीं आई, यानी वोट तो हमने बीजेपी के अगेंस्ट किया ना, जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को, लेकिन एमएलए खरीदने के बाद अगर वो तख्ता पलट करके बीजेपी आ रही है, इसका मतलब वो लोगों की यानी जनतंत्र की सरकार नहीं है, वो राजतंत्र की सरकार। और वही सेम दिल्ली में हो रहा है, अब धनतंत्र की सरकार है। तो राजतंत्र और धनतंत्र चल रहा है इंडिया में, बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरीके से लोगों को, जनता को, और जो उनके हक हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और उसके अंदर बेसिकली वही है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वहाँ से हम पैसा लेके बिल पास कर दिया। अभी टेंशन ये है कि उसका पैसा हम कहाँ से पूरा कैसे करे सरकार, है ना। आज अगर उसका पैसा पूरा नहीं हो रहा, जब कोविड आया है तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई को या प्राइवेट एम्प्लॉई को हाइक नहीं दे रहे हैं, सैलरी उनका टीए मार दिया हमने। टीए मारने के बाद 1.5 साल उनको कोई सैलरी में हाइक नहीं होगी, सेम सैलरी पे काम करेंगे। ये बोल दिया कि कोविड की वजह से ये हमने डिसीजन लिया, तो नया संसद बनाने की क्या जरूरत थी? और 3000 करोड़ लेके मेरे को वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति क्यों बनानी थी? अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बना सकता हूँ, जिसका नाम ऑलरेडी हमारे नेता पे, जिनके नाम से हमने मूर्ति बनाई, उन्हीं के नाम पे ऑलरेडी स्टेडियम था, तो हम उसी को बड़ा कर लेते हैं। मैं चाइना से लोन लेके थोड़े 3000 की बनाऊंगा। मेरी जेब में सर पैसा नहीं है तो मैं आपसे उधार लेके घर में राशन डालूंगा या मैं आपसे उधार लेके गाड़ी लूँगा, मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर इतना ज़्यादा हम कंफ्यूज है, गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि वो देश को चलाने में 200% नाकाम है, उसने अपनी बहुत सारी नीतियों से दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ी नीति अभी यही है कि यही हमारी सरकार थी जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो ये सिर पे सिलेंडर लेके नाचते थे कि ये स्टोरेज बंद होना चाहिए। उस टाइम पे प्याज 100 रुपये किलो गया था, तो यही लोग थे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, और यही लोग थे जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की बात करते तो अपने मैनिफेस्टो में छापते थे। आज वो मैनिफेस्टो इनका कहाँ गया? आज वो जो स्टोरेज का काला कानून, ये बोलते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में स्टोरेज का काला कानून बनाया था जिसमें वो लिमिटेड पावर थी स्टोरेज की, आज इन्होंने तो लिमिटेड पावर को बिल्कुल ही स्टॉपलेस कर दिया है, वो लिमिटेड पावर भी ख़त्म कर दिया। अब तो आप अनलिमिटेड स्टोर करोगे। और ये स्टोर अभी प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा खास बात होती है, आपके पास ना स्टोरेज, मतलब हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जब उसका आउटपुट दिखता है। हम इनपुट नहीं डालेंगे कभी भी, हम आउटपुट पे रहेंगे। अगर वो बंदे आज इनपुट से पहले आउटपुट, यानी वो पहले ही पैसा लगा रहे हैं जबकि उनके पास आउटपुट भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये अंदर की रली मिली भगत थी, पहले से सरकार ने पहले थ्रू कर चुकी थी कि आप स्टोरेज बनाओ भैया, आप टेंशन मत लो, ये बिल तो हम पास कर ही देंगे। तो बिल्कुल इसमें कोई दोराई नहीं है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, साफ साफ है। बिल पास होने से पहले कोई रिलायंस या अडानी कैसे स्टोरेज बना लेगा, वो भी 5 एकड़ में, 15 एकड़ में, 20 एकड़ में। 20 एकड़ की स्टोरेज का मतलब आप समझते हो? हमारा किसी भाई को अगर ये ना पता हो तो आप पता कर लेना, 1 एकड़ से बड़ा FCI गोदाम नहीं है हरियाणा पंजाब के अंदर। अगर 5 एकड़ में स्टोरेज हो रही है, इसका मतलब ये है कि 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट की फसल वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। 3 डिस्ट्रिक्ट का माल स्टोर होने का मतलब है कि आप पूरे अगर पंजाब में 3 डिस्ट्रिक्ट का माल आप स्टोर कर दो, तो इसका मतलब ये होगा आपको अनाज की कमी आएगी 200%। रिजल्ट क्या होगा? आशीर्वाद आटा मिलेगा आपको, अंबानी का आटा मिलेगा, जियो का आटा मिलेगा, अडानी का आटा मिलेगा। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि किसान आड़ती को बेचे या आड़ती उससे अपना ले ले और हम FCI को बेचें, MSP पे बेचें, और MSP के बाद हम अपनी मर्जी से सरकार की बाउंडेशन पे 20 रुपये की कणक लेके 25 रुपये किलो आटा बेच दे। अब बात तो ये होगी ना कि मैंने MSP किसान भाइयों को 20 रुपये दे के मैंने MSP पे खरीद लिया, लेकिन उसके बाद मैं बोलूँ मेरा स्टोरेज का खर्चा हो गया जी, 20 रुपये की मैंने कणक खरीदी, 20 रुपये मेरा स्टोरेज का खर्चा है, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है। 50 रुपये किलो आटा चाहिए तो ले ले, क्योंकि जितना भी प्राइवेटाइज हमारा है, आज 5 रुपये का रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये का हो गया। वो 50 रुपये होने के बाद अगर सरकार के, अभी आप जाके किसको शिकायत करोगे? अल्टीमेटली मेरे पास कोई रास्ता नहीं शिकायत करने का। मैं शिकायत करूँगा, वो कहेगा सरकार ये बोल देगी ये तो इसकी दुकानदारी है, ये बताएगा। कोई भी छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, अगर उसके बिना MRP का माल उसकी दुकान में पड़ा होगा, वो रेट मिलेगा जो रेट वो बेचना चाहता है। और दुकानदार साहब कहते हैं भाई साहब अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो।
वो तो सर, हमारी आप ज़रूरत है। आप इतनी डिटेल में जानते हैं, आप पहले ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और आपको इतनी जो डिटेल पता है, इसका कारण क्या है? मैं इसका कारण नहीं है सर, मैं एक फाइनेंस छोटी सी अपना फाइनेंस इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। अदरवाइज़ मैं गांव से आता हूँ और खेती मेरे खून में बसी है। हमने खुद मेहनत करके रखी है। आप जो सवाल प्रधान जी से कर रहे थे, मैं तो वो पहले कह रहा था, मैं कहता सरकार तो फिर गधों की है भाई, हम तो वो हैं जो जोटे के ना रस्सी फंसा के उस पर खेती करा लें। ये तो फिर गधे ही सरकार है, जोटे भी होंगे तो हम करवा लेंगे उनके पास। लॉजिकल बात ये है कि हमने खेती करी है और खून में है हमारे। जब आप एक छोटा सा उदाहरण ये है, अप्रैल के अंदर ना बहुत तेज धूप होगी और लू चलनी शुरू हो जाएगी, तब हमारे किसान भाई खेत में जाके ना फसल काटते होंगे। तो हमें धूप सहने की, लू सहने की हमारी बचपन से आदतें हैं, हमने देखे हैं, हमें दिन रात काटते। तो मैं किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, वैसे जॉब करता हूँ। तो ये है, आप देख सकते हैं कि जो आज आंदोलन में खड़े हैं, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप बेवकूफ़ बना दोगे या जिन्हें समझ नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा जॉब करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं। तो ऐसे एक प्रोफेशनल आदमी को आप इतना इजीली जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकते। स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की जो किसानी से निकले हैं, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं किसानी में रहे हैं एंड आज खुद जॉब कर रहे हैं। वो ले कुछ भी, हमारे पास कौन सा काला धन है भाई साहब। नोटबंदी हो बोला, मेरे अंकल बोले का भाई नोटबंदी होगी, माँ जी मेरा नाम का 100 का नोट भी बंद हो जाओ, है ही नहीं। 50 का ले रहा हूँ मैं, तो भाई कितने बंद करो, कर दो भाई, 500 का बंद हो, 1000 का मेरे पास है ही नहीं। एम्प्लॉय आदमी है। एक ही हमारे दुष्यंत जी यहाँ भी है, एडवोकेट साहब है। सर आ जाइए आप। जी आप बताइए, आपका क्या विचार है, अब तक जो जर्नी रही है, क्या इस जर्नी में आपके पेन रहे हैं, क्या आपको चीज़ों से जूझना पड़ा है? आपने यहाँ पे सेटअप बनाया है, आप लोग कई महीनों से जो है लंगर लगाया हुआ है आपने, तो क्या आपको चैलेंजेस रहे हैं और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप आप आगे लेना चाहेंगे? देखिए, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस हमें क्या रहा है कि मीडिया से हमें जो है नेगेटिव कवरेज मिला है। जो नेशनल मीडिया है उसने हमारे को प्रॉपर वे में कवर नहीं किया, जबकि नेशनल मीडिया का काम होता है कि वो जो जनता बोल रही है उसका जो सच है, उस सच को वो जनता को दिखाए कि एक्चुअली में देश में हो क्या रहा है। मीडिया का काम, नेशनल मीडिया का काम ये था कि वो ये बताती, वो कानूनों पे बहस करती कि कानूनों में क्या लिखा हुआ है, क्या ये वाकई किसान के खिलाफ है, क्या ये वाकई आम आदमी के खिलाफ है, क्या ये वाकई व्यापारियों के खिलाफ है, या क्या इनसे वाकई राशन कार्ड की व्यवस्था पे जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा। उन्होंने इन किसी विषय पे कोई बात नहीं की। उन्होंने क्या बात की, किसान आतंकवादी है, किसान ये है, किसान नक्सलवादी है, इस तरह की वो बातें करते गए। उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि उन्होंने अपना रोल नहीं निभाया। तो हमें बस एक यही दिक्कत आई है, बाकी तो वाहिगुरु की दया, परमात्मा की दया किसानों के ऊपर होती है, क्योंकि किसान अन्नदाता है तो वो भगवान का दूसरा रूप ही उसका माना जाता है कि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा समाज में है तो वो किसान का होता है, फिर उसके बाद डॉक्टर वगैरह का होता है। तो बाकी हमें कोई मुश्किल नहीं आई, कोई मुश्किलात हमें नहीं आई और ना ही हमें कोई ऐसी मुश्किलात आएगी। पर हैरानी की बात यह है कि जब हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा रोड पे नहीं खड़ा हुआ अपने अधिकारों के लिए, जिन लोगों को लोग ये बोलते हैं कि ये कितने गंवार लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो लोगों के लिए खड़े हुए। सोचना चाहिए, जो लोग नौकरी करते हैं, जो 8 लाख की डिग्री लेके, 10 लाख की डिग्री लेके 15,000 की, 16,000 रुपये की नौकरी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो पीछे लेबर कोड में जो चेंजेस हुए हैं, 3 लेबर कोड थे, उनमें जो चेंजेस हुए हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। क्या उनको नहीं खड़ा होना चाहिए था अपने अधिकारियों के लिए, पर वो चुप हैं। ना उन्होंने ये देखा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इन्होंने पास किया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या उनको देखना नहीं चाहिए था? 2 पेज का एक्ट है, सिर्फ 2 पेज का, 2 सेक्शन है। क्या गूगल करके इतना भी टाइम नहीं है कि 2 पेज का सेक्शन देख सकें कि किसान 4 महीने से रोड पे हैं, कि वो क्यों रोड पे हैं, ऐसा क्या लिखा हुआ उन कानूनों में? आप उन कानूनों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक जो है वो अनलिमिटेड कर दिया, स्टॉक अनलिमिटेड कर दिया। और अगली लाइन में क्या लिखा, आप जान के हैरान हो जाओगे। अगली लाइन में ये लिखा हुआ है कि हॉर्टिकल्चर जब तक कि 100% और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब तक कि 50% महंगा नहीं हो जाता, कब से, पिछले साल के रेट से, तब तक सरकार दखल नहीं देगी। समझ रहे हो? मतलब 100 रुपये की अगर आज कोई चीज़ है तो जब तक वो अगले साल 200 रुपये की नहीं हो जाती, सरकार दखल नहीं देगी। किसको नुकसान है? क्या उन लोगों को नुकसान नहीं जो 8 लाख की डिग्री, 8-9 लाख की डिग्री लेके 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं? क्या वो रसोई का खर्चा उठा लेंगे? सोचें वो लोग, पर वो लोग नहीं सोचते हैं। ये अगर मीडिया अपना पॉजिटिव काम करता, बस एक यही लैक हमारे आंदोलन में रहा कि मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि नेशनल मीडिया की जिम्मेवारी बनती थी कि वो जो है जनता को बताए कि ये कानून तुम्हारे लिए कितने खतरनाक हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ खतरे बताए, वो बेनिफिट भी उनके बताते अगर थे कोई तो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो मोदी किसान आतंकवादी, किसान नक्सलवादी, किसान जो है चाइना से फंडिंग आ रही है, किसान खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने अपना सारा फोकस इसी पे रखा। बस एक हमें यही दिक्कत हुई, बाकी किसान ना मौसम से डरता है, ना किसान को कोई किसी कीड़े बिच्छू मच्छर का कोई खतरा है। ठीक है, ये तो हमारे लिए आम सी चीज़ें होती हैं, हमारा रोज़ का काम है।
ना हमारे पास अन्न की कमी है, क्योंकि हम अन्न उगाते हैं। जब हम पूरे देश को खिला सकते हैं तो हम अपने मोर्चे पे, अपने धरने पे वाहिगुरु की भगवान की दया से हम कभी भी यहाँ अन्न की तो कमी होने नहीं देंगे। हमने आज भी लंगर लगाया, जितने लोग रुके थे हमने उन लोगों को भी खाने की व्यवस्था की, उनको हमने माइक पे बोला। और लोकतंत्र का उदाहरण देखिए, जो बीजेपी लोकतंत्र या कोई भी पार्टी लोकतंत्र करती है, हमने माइक दिया, हमने माइक उन लोगों को दिया जो रोड के परली पार खड़े थे, जो जाम में फंसे हुए थे, जो हमें गालियां दे रहे थे। हमने उनको बोला कि भाई ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये बीजेपी के बंदे नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम किसान हैं, हम आपके भाई हैं। अगर आपको हमारे से कोई ग्रज है तो आप हमारा भाई माइक पकड़ो, हमें गालियाँ भी दो और हमारे यहाँ के लंगर भी खाओ और खाना भी खा के जाओ। हमने तो उनको ये बोला, इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या होएगी? डेमोक्रेटिक वे में तो हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहे, किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहे। और ये सरकार ने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, इन्होंने तो कानून को चेंज कर दिया। ये तो तानाशाह बन गए हैं। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हमारा देश जो है, जो हैप्पीनेस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस जो इंडेक्स आया है, उसमें हमारा देश 11वां, दुनिया का 11वां सबसे दुखी देश है हमारा देश। पाकिस्तान हमारे से खुश है, नेपाल हमारे से खुश देश है, बांग्लादेश हमारे से खुश देश है। 139वां रैंक आया है हमारा 150 कंट्रीज़ में। सोच के देखिए आप कहाँ जा रहा है हमारा देश। कहते हैं ना कि जब आपके इरादे अच्छे हों तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। ये लंगर चल रहा है क्योंकि आपके इरादे अच्छे हैं, क्योंकि वो ऊपर भगवान वाहिगुरु जिस भी रूप में आप मानते हैं वो यहाँ किसानों के साथ है। यहाँ अगर कोई आतंकवादी होता, कोई खालिस्तानी होता, कोई बुरे इरादे वाला होता तो सबसे पहले यहाँ पे मिलिट्री होती, ना कि यहाँ पे नॉर्मल कोई भी पुलिस घूम रही होती। यहाँ पे मिलिट्री होती, बिकॉज अगर कोई इतनी भारी संख्या में आतंकवादी होते हैं ना तो वहाँ पे जो है पूरी आर्मी लग जाती है। ये मैं कहना चाहूँगा हमारे जनता से, और साथ में ये भी कहना चाहूँगा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जब से मैंने किसानों के ऊपर मुद्दा ये जो है कवर करना स्टार्ट किया है, मैंने स्टैट्स देखे हैं, मेरी वीडियोस जो है वो डाउन जा रही हैं। इसका भी मुझे एक मेरे सूत्रों से पता लगा है दैट जो भी किसानों के मुद्दे हम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वहाँ पर उन्हें दबाया जा रहा है। बिकॉज देर आर जो कि हमारे रिलायंस है और जो फेसबुक है, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं जो है एक पार्टनरशिप हुई थी पास्ट में। अब ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, हमारे पास एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, बट इट्स पॉसिबल। इसलिए आप लोगों से मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो है वीडियो आगे लोगों तक पहुंचाएं, और इन वीडियो से किसान भाइयों की जितनी भी वीडियोस हैं आगे भी मैं और बनाऊंगा। दिल्ली भी जाऊंगा, हो सके तो बंगाल भी जाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी। जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा सारा का सारा मैं डोनेट करूंगा किसान आंदोलन में, सारा का सारा। सोशल मीडिया ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ, बेशक वो साढ़े थोड़ी मतलब उससे अनरेस्ट महसूस है, लेकिन वो इतना खुशी, यहाँ लंगर 3-4 हज़ार बंदे का लंगर अरेंजमेंट था। सारी जनता के मतलब दान पुण्य से लंगर लगाया गया था, चाय पानी का लंगर, हर एक तरह का यहाँ मतलब हमने हर सुविधा कोशिश करी है। जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी कोई ऐसा जिसमें हमने उसमें दे रखा था भी जो एमरजेंसी है, जैसे अपना डिफेंस की सर्विसेज हैं, पुलिस की सर्विसेज हैं, या अपना जो एम्बुलेंस वगैरह है उसको बड़ी तरीके से हमने उनको बड़ा सत्कार से उनको जाने दिया। किसी तरह की कोई अनप्रिय घटना नहीं हुई। तो ये सारा श्रेय जो है पीसफुल जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं उसका जिंदा ज़्यादा मिसाल है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं भी इसको ज़्यादा ना लमकाया जाए। लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ दिल्ली बैठे हैं, देखो किसान जनता का आंदोलन है। 3 कानून वापस और एक हमारी जो है MSP पे कानून की मांग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांग है, उसको ठहराए तो जल्दी इसका हल होना चाहिए। इसमें जनता का भला है, सरकार का भला है, देश का भला है। सर मोदी सरकार को तो आपने जवाब दे दिया, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या कहना चाहेंगे? वो एक सुप्रीम पावर है, पूरे देश के जो है एक सुप्रीम लीडर है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे एज अ पर्सनल मैसेज और एक सोसाइटी के लिए मैसेज क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे अपना प्रधानमंत्री जी हैं
ठीक है, जो देश का प्रधानमंत्री वो सारी जनता का राजा होता है, तो प्रजा को इतना मेरा ख्याल है अनरेस्ट देख के, अनहैप्पी देख के उसको दुख मतलब नब समझनी चाहिए जनता की। जनता के द्वारा चुना गया है तो जनता के दुख को भली मत उसको समझना चाहिए। मान योग हमारे सत्कार योग जो प्रधानमंत्री जी है, पूरी जनता की तरफ से अपील हम करते हैं उनको भी जल्दी इसका हल ढूंढना चाहिए। यही जनता का भला है, यही उन्हीं प्रधानमंत्री का इसमें भला है और देश का भला है। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम उसको, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं, हम उनको ये साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र का मूलभूत भी है कि लोकराज जो है वो लोकलाज से चलता है। आज लोकलाज उनके साथ नहीं है। बेशक उनके पास धनतंत्र है, जनतंत्र उनके पास नहीं है। लोकराज अगर चलाना है तो लोकलाज की बड़ी ज़रूरत होती है। आज आपका जवान सड़कों पे है, आज आपका किसान सड़कों पे है, आज आपका रोजगार के लिए जो नौजवान है वो भटक रहा है, ठीक है। आज आपके LIC के एम्प्लॉई, आज आपके बैंकों के एम्प्लॉई, बैंक के कर्मचारी, आज आपके जर्नल इंश्योरेंस के कर्मचारी, गेल के कर्मचारी, बेल के कर्मचारी, हेल्थ के कर्मचारी, सब कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सब A to Z कर्मचारी। कौन से लोग इनके साथ बचे हैं अब? ये किस मुंह से ये लोग सत्ता में बैठे हुए? इनको तो नैतिक आधार पे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्रिमंडल को। इनको सरकार से गिर के उनको इलेक्शन करवाने चाहिए दोबारा। इनका सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इनका सत्ता में रहने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास जो है लोकलाज नहीं है, जनतंत्र नहीं है। इनके पास बेशक धनतंत्र होगा तो इनको तो सरकार को इस्तीफा दे के मंत्रिमंडल से बर्खास्त होकर इस सरकार को तुरंत प्रभाव से गिर जाना चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए और नई सरकार बननी चाहिए जो इस देश के लोगों के लिए सोच सके, ना कि इस देश के लोगों को सड़कों पे बाहर फिरा दे और उनको जो है भुखमरी का शिकार बना दे। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ LIC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਰੇ। ਚਲਿਏ। मोदी जी अपने आप को पावरमैन मान के पब्लिक का शोषण कर रहे हैं। रावण जैसे तो ताकतवर मोदी होने से रहे। जब रावण जैसों का इलाज कर दिया उस परमात्मा ने, तो किसान में भी उस परमात्मा की शक्ति है। तो मोदी जियों को हम संदेश मीडिया के माध्यम से यही देना चाहते हैं, अगर अपनी बुद्धि को ठीक करे तो ठीक है, नहीं तो रावण का ही हाल होगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। सब कुछ मोदी ने बेच के, ये मोदी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार नहीं, ये तो चंद आदमियों की सरकार है। पब्लिक का शोषण करके चंद आदमियों की झोली में जो है मोदी जी ने ये पावर डाल दी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ मोदी जी और मीडिया से भी, मीडिया वाले भाई भी कुछ ऐसे हैं जो मौके पे तो बेचारे अपना काम करते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो पैसा खाते हैं। अंदानी अंबानी जो भी खरीद रखे हैं, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना कि एक दिन नंबर उनका भी आएगा, मीडिया वालों का। जैसे आज जितने भी इंडिया के अंदर सरकारी चीज़ें थी सबका निजीकरण कर दिया, तो इस मीडिया का भी निजीकरण कर देंगे। अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर है क्या मीडिया को आज़ादी? उनको उनकी बोलती बंद कर दी ना, तो इंडिया की मीडिया की भी बोलती बंद हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मीडिया को भी यही संदेश है कि वो अपने आप को सुधार लें और इस जन आंदोलन का, किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, इसका साथ दें, अभी वक्त है। ठीक है। बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो सरकारों को जो है थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए। किसान की मैं खुल के परमात्मा के बारे में थोड़ा दर्शन कराना चाहता हूँ। किसान में तीनों ताकत होती हैं। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम होता है सृष्टि का रचना, विष्णु का काम होता है पालन पोषण करना और शिव जी का काम होता है श्रृंगार करना। किसान के अंदर स्वयं तीनों शक्तियाँ मौजूद हैं। वो बिजाई भी करता है, उसका पालन पोषण भी करता है, उसका श्रृंगार भी करता है। तो इसलिए मेरा मीडिया और मोदी जी से यही प्रार्थना है कि वो अपने आप को समझ जाएं, वरना उनका नंबर रावण की तरह आने वाला है। क्योंकि स्वयं रामचंद्र जियों ने अवतार लेके उनका दमन किया था। और किसान तो स्वयं एक नहीं, रामचंद्र जियों के रूप में पता नहीं कितने असंख्य
जितने भी हैं वो किसान हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करके जन आंदोलन है इसका जो है नहीं बात माने और अपने आप को पहचाने। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, बड़े कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़े कानून वापस लो, वापस